Hi everyone, welcome to Smooth Fat. In case you're wondering why I'm on the bed, I finished my Pilates class and I've been so lazy after that. इसलिए मैं यहाँ पड़ी हूँ. अनायका को अभी उसकी क्लास में भेजा, स्कूल से आई थी वो. आज मॉम का बर्थडे है, सो मॉम ने उसके साथ लंच किया एंड नाउ शी इज गॉन फॉर अदर क्लास. आयजा को अभी मैंने फीड करा के उसके रूम में डाला है. एंड टुडेज टॉपिक इज ब्रेस्ट फीडिंग. I've already spoken about this once on Smooth Fat, but that was my breastfeeding journey with Anaika. Aiza's breastfeeding journey, I have been receiving a lot of DMs from a lot of mothers or expecting mothers. उनके बड़े सारे questions है, तो I thought I'll quickly come and answer all your queries, questions जो भी हैं. Also, we are doing a giveaway because we've not done it in a long time. So let me announce that first. These are the two winners. And this time I'm giving away these foundations. This is the MAC Studio Radiance, their newly launched foundation, and this is the Estee Lauder foundation. But because I don't know your shades, you'll have to mention your shades नीचे. You can just mention not your exact shades, of course, सबके different हर brand में होते हैं. But what you can do is either you tell me you're a light, you're wheatish complexion, or you're a dusky complexion, or you're medium to wheatish, or whatever. जैसे भी आपको बताना है, so that I just have an idea. I have more foundations other than these. ये तो मैंने एक थोड़ी लाइट और एक डार्क निकाल ली थी. ये थोड़ा लाइटर है for me also. Then this is the one which is slightly darker for me. I also have Bobbi Brown, Makeup Forever, काफ़ी सारे brands की है. So I'll try to match whatever you tell me your shade is. तो मैं वो वाली भेज दूँगी. और अगर आपका shade बिल्कुल ही मेरे पास नहीं है, like if in case you're dusky or dark brown or whatever, then I can try and send you some blushers or lipsticks or something. मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं foundation इतनी सारी है मेरे पास base, लेकिन मैं कैसे करूँ उसका giveaway. Anyway, coming back to my breastfeeding journey. This time, of course, because I'm a second time mom, it was much easier. I was much more prepared. Like first time I've spoken about it, I had a lot of issues with my low milk supply. This time that was not such a big issue. Although now it's become with time because her diet has really increased and I started going out. तो वो थोड़ा सा affect होता है. Starting 1.5 month, I was sleeping with her. I had changed my room and I was literally feeding her every 2 hours or 2.5 hours. And that's why I could exclusively do it in that period of time. So I was very happy कि मैंने उसको 2.5 महीने exclusive कराया, which was a big deal for me because अनायका के time पे I really struggled. I've cried so much and it for first time moms it is very tough. क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक तो आपके इतने overflowing emotions होते हैं, आपकी body has gone through so much. It's literally like a trauma that you've gone through. और उसके बाद this breastfeeding where you're not getting enough sleep. Every time you're trying to sleep तभी बच्चा उठ गया है, कुछ है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी बच्चा रो रहा है. एंड विदाउट स्लीप इट्स रियली हार्ड टू फंक्शन. ऑल्सो आपके और इश्यूज होते हैं, खाने के इश्यूज, आपको उबले हुए खाने हैं. बट इफ़ यू आर रियली मेंटली प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल प्रेग्नेंट वुमेन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्लीप. दैट्स वन थिंग दैट यू विल हैव टू टेल योर ब्रेन. मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये स्लीप की चीज़ होती है ना, इट्स मोस्टली मेंटल. ऑफकोर्स योर बॉडी विल बिकम टायर्ड एंड सम डे इट विल गिव अप इफ यू नीड रेस्ट, बट अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट यू टेल योर सेल्फ. मुझे महीनों हो गए होंगे कि मेरे को 7 घंटे 8 घंटे की स्लीप तो मिली ही नहीं है, और एट अ स्ट्रेच 6 घंटे भी नहीं मिले होंगे. 2 पार्ट्स में मिलती है, वो भी अब स्टार्ट हुआ है. उससे पहले 3 पार्ट्स में मिल रही थी. व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, आपके ब्लैडर की वजह से आप सुसु करते रहते हो पूरी रात, सो दैट यू डोंट गेट लाइक अनइंटरप्टेड स्लीप. उसके बाद आप जब जैसे बच्चा हो जाता है तो भूल ही जाओ, तब तो बिल्कुल ही बुरा हाल होता है. बट ट्रस्ट मी, जो लोग मॉम्स हैं, इट विल गेट बेटर. इट्स द फर्स्ट फ्यू वीक्स विच इज़ वेरी हार्ड. उस टाइम आप गिव अप मत करो. इफ़ यू आर गेटिंग सप्लाई एंड इफ़ यू आर फीडिंग, तो आप लगे रहो. इट विल बी टफ. दिल को मत लगाओ छोटी छोटी बातें, हर्ट होती हैं उस टाइम पे बातें किसी की. एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो. गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प. अगर आपकी फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, आपकी मदर है, आपकी स्टेप मदर बोलने वाली थी, आपकी मदर इन लॉ है, कोई भी है, जस्ट आस्क फॉर हेल्प. योर सिस्टर्स, योर सिस्टर इन लॉज, योर हुएवर यू कैन, योर हस्बैंड, एंड बी वोकल अबाउट इट कि ये मुझे इस चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए आपकी, क्योंकि अकेला इट्स लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू एवरीथिंग. जो लोग एक्सक्लूसिवली फीड नहीं करा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई कम है या आप बहुत टायर्ड हो या आपसे नहीं हो पा रहा फॉर व्हाटएवर रीजंस, ऑल्सो यू आर जस्ट डूइंग व्हाटएवर यू कैन और बाकी का आप टॉप फीड दे रहे हो,
It's fine, to each their own. I will not comment on it. Of course, every mother knows what is best for their baby, but if you're not able to do, you cannot overlook that. आप मर थोड़ी ना जाओगे, अब जितना कर सकते हो उतना ही कर सकते हो, फाइन. अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंक्रीज द मिल्क सप्लाई, देयर इज नो डेफिनेट थिंग, बट यू कैन take Shatavari, which I still take. It's a normal Ayurvedic thing, which is anyway आपके hormonal balance, periods है, वो सब के लिए वो हेल्पफुल होता है. तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, दवाई नहीं है, वो आपको बताया ही होगा, सारे बड़े लोग सजेस्ट करते ही हैं. मेथी सीड्स हैं, वो खा सकते हो. मैं कॉन्स्टेंटली लेती हूँ, ये पानी पीती हूँ, यहाँ पे मेरे बेड साइड पे पड़ा ही रहता है मेरा हमेशा कप. दिस इज़ सौंफ, अजवैन, जीरा. उसका मैंने तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लिया है. गर्म पानी में डालो, इस कप में डालती हूँ और पूरा दिन ये वाला सिप करती रहती हूँ अभी तक. अब मेरी आदत ही बन गई. इट रियली हेल्प्स विद वेट लॉस ऑल्सो, एसिडिटी ऑल्सो, एंड हेल्प्स विद लैक्टेशन, बोलते हैं ऐसे. तो वो कर सकते हो. मेथी सीड्स भिगो के रात को सो जाओ, सुबह वो पानी पी लो या वो निगल जाओ सीड्स, वो भी कहते हैं अच्छा है. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब आपको ये लड्डू पड्डू मिलेंगे, वो देख लो आपको क्या खाना है. घी भी इतना कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है. दलिया से बहुत लोग बोलते हैं. यू कैन हैव, जिन चीज़ों की कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प विथ योर लैक्टेशन. सेकेंड, क्या मैं टूल्स यूज करती हूँ. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग माई ब्रेस्ट पंप दैट आई एम यूजिंग. करेंटली आई एम यूजिंग स्पेक्ट्रा करके एक ब्रांड है जिनका इलेक्ट्रिक है. अब मैंने कभी मैनुअल यूज़ नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही टीडियस और टफ प्रोसेस होता होगा टू मैन्युअली पंप आउट मिल्क. तो वो आप कितनी देर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसमें आपकी बैक की लग जाएगी, आपके हाथों की लग जाएगी. इसमें ही मुझे इतनी दर्द हो रही होती है ऑनेस्टली, बैठे बैठे करते करते. बट दिस आई डू नॉट द होल डे. वैसे बोलते हैं कि अगर आपको अपनी इंक्रीज करनी है सप्लाई, तो आप बिटवीन योर फीडिंग सेशंस, जब आप बच्चे को फीड कर रहे हो, जैसे आपके पास बीच में 3 घंटे हैं, तो आप 1.5 घंटे के बाद ये कर लो, तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी. बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई काइंड ऑफ थिंग इज देयर, कि जितनी बच्चे की डिमांड है उतनी आपकी सप्लाई आएगी. दैट्स द सिग्नल दैट योर ब्रेन गेट्स. तो आप जितना कम फीड कराओगे अपने बच्चे को, उतना कम आपके बॉडी को लगेगा कि नहीं है बच्चे को रिक्वायरमेंट. अभी बॉडी को तो ये नहीं पता कि बच्चा बीच में फॉर्मूला ले रहा है, क्या हो रहा है. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे कराएं. ऐसा होगा आपकी सप्लाई कम होगी. अगर कम है तो, कईयों की तो बिल्कुल फ्लोइंग होती है, बड़ी जेलसी हो रही होती है मुझे, पर नहीं, इट्स रियली गुड पीपल हु गेट इट, एंड देयर आर पीपल हु डोनेट ऑल्सो, विच इज़ आई थिंक सच अ गुड थिंग टू डू. इट्स रियली, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं जो नहीं फीड करा पाती, या कईयों के बच्चे जो प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं या प्री नेटल केयर में हैं और उनको ज़रूरत होती है, एंड दे टेक इट फ्रॉम दीज बैंक्स. सो इट्स अ रियली गुड डीड. बट जिनकी कम आ रही है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे फीड कराएं. अगर कम है, बच्चे का पेट नहीं भरा, देन यू टॉप इट अप इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग योर फीड्स. बेसिकली आपने अभी दी और फिर आपने 2-3 घंटे बाद फॉर्मूला दे दिया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपने दोबारा कराया, फिर भी बच्चे का पेट नहीं भरा. सो इट्स बेटर कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कराओ, जब भी बच्चे को भूख लग रही है. एंड इफ़ यू थिंक कि उसको स्टिल द बेबी इज हंग्री, देन टॉप इट अप इंस्टेड ऑफ कीपिंग द गैप सो लॉन्ग. फिर आपकी सप्लाई इफेक्ट होगी. इसीलिए लोग ब्रेस्ट पंप भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में पंप करते रहते हैं कि बॉडी को लगे कि ओ बच्चे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो सप्लाई पंपिंग से बढ़ती है. तो एक that reason is there. Now let me tell you that these breast pumps, especially the electric ones and these imported brands, are expensive. So if you are trying to invest in them, first of all, first time moms, if budget is a constraint, don't buy it. पहले से मत खरीद के रखो. What if your breastfeeding journey is very tough और आपको नहीं आ रही इतने मिल्क सप्लाई, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपका वेस्ट हो जाएगा वो पैसे. तो वेट, see for a few days, start feeding. When the feeding is get, क्योंकि आप स्टार्टिंग, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले 1 हफ्ते में बाहर निकलना है आपको, वो तो है नहीं. You will be with the baby, you will be around the baby, and it's the best to feed from your breast. To be honest, directly करने पे क्या होता है ना, वो I'll come to that later. So then when you are doing that, तो आपको फिगर हो जाएगा कि हाँ मेरा फीडिंग ठीक चल रही है, अब मुझे बीच बीच में रेस्ट भी चाहिए, तो मैं बीच बीच में कभी कभी पंप कर सकती हूँ. तो उसका क्या फ़ायदा होता है, आप अभी रात को जैसे बच्चा सोने से पहले 7 o'clock या 7:30 आपसे फीड लिया, अब आपने 1 घंटे बाद दोबारा उसको पंप कर दिया और आप सोने चले गए. अब जब वो बच्चा उठेगा, नेक्स्ट फीड वो जो आपने
पंप करके एक्सप्रेस्ड मिल्क रखा है वो पिएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उठेगा तब आपको उठने की ज़रूरत है. इफ़ यू हैव हेल्प, आई मीन जो भी है, जो आप आए आपके पास या आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो दे सकते हैं, तब तक आपको थोड़ा लंबा रेस्ट मिल जाएगा. सो दैट वे इट्स बेनिफिशियल. सेकेंडली, आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिट में कब आता है, इफ़ यू स्टार्ट गोइंग आउट. जो आप पहले तो आई थिंक कोई भी 1 महीना तो नहीं निकलता इतना, लेकिन अगर आप जब निकलना स्टार्ट करें और आप 2 चीज़ों में बहुत काम आता है. 1 कि आपने बैंक बना लिया, आप अपना फीड इकट्ठी करते हो, फ्रिज में रख के चले जाते हो, तो जब आप नहीं हो तो बच्चे को जो भी घर पे है तो वो उनको वो वाला मिल्क दे सकते हैं. और सेकंड, जब आप बाहर हो तो आप अपना पंप कैरी कर सकते हो. 5 घंटे 6 घंटे के लिए आप बाहर चले गए, अब उतनी देर आप फीड नहीं कराओगे, एक तो आपका लीक हो जाएगा, या कई लोगों के चलो नहीं है सप्लाई, अगर ज़्यादा लीक नहीं भी होता तो आपका इतना लंबा लंबा गैप आने लग जाएगा. योर बॉडी विल फील दैट द बेबी डजंट नीड. थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया इट्स फाइन, बट बिल्कुल इतना लंबा गैप मत डालो कि बॉडी विल कीप गेटिंग दैट सिग्नल दैट द बेबी डजंट नीड मिल्क. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो पंप कर लो, भले आप पंप एंड डंप ही क्यों ना कर रहे हो, पर एटलीस्ट आपकी सप्लाई कम नहीं होएगी. सो दैट वे ब्रेस्ट पंप्स आर हेल्पफुल. मैं अनाइका के टाइम पे एक यूज़ करी थी, दिस ब्रांड कॉल्ड मेडेला. आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट, बहुत अच्छा था. उसके साथ तो इतनी अच्छी एक ब्रा भी आती है जिसमें वो अटैच हो जाता है एंड यू कैन बी हैंड्स फ्री, यू डोंट हैव टू कीप होल्डिंग इट. बट द ओनली प्रॉब्लम इज मेडेला के पार्ट्स इंडिया में नहीं मिलते. उसकी बॉटल्स दिस दैट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड, वो नहीं मिल पा रही थी. सो इट वॉज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. कौन है? हाँ, मैं शूट कर रही हूँ. तो मेडेला के पार्ट्स थे नहीं यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने दूसरा फिर मुझे ख़रीदना पड़ा इस बार. इट वाज कॉल्ड स्पेक्ट्रा. नाउ आई एन्जॉय स्पेक्ट्रा मोर. एन्जॉय क्या मतलब, अच्छा है ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसकी बॉटल्स, इसके सब कुछ. बॉटल्स का बेस्ट है कि ना वही अटैच होती हैं, उन्हीं बॉटल्स को नीचे से खोल लो, उसी के ऊपर का वो मिलता है, उसका कवर भी मिलता है अगर फ्रिज में रखनी हो, और उसका ही जो बॉटल फीडिंग के लिए निप्पल और जो भी होता है वो ऊपर का वो पार्ट भी मिलता है. तो डायरेक्टली यू कैन फीड द बेबी फ्रॉम दैट बॉटल ओनली. तो क्योंकि ट्रांसफरिंग इधर उधर में गिर जाता है, कई बार वेस्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दैट. सो इसीलिए दैट वे इट्स वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो स्पेक्ट्रा हैज़ 2 टाइप्स. वन इज़ कि आप उसको पूरा प्लग्ड इन रखना पड़ता है पूरे टाइम, और एक ये जो मेरा वाला है वो पोर्टेबल है. तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपने इसको चार्ज कर लिया, उसके बाद अब आप इसको ट्रैवल भी कर सकते हो लेके. ऑल्सो देर आर ऑप्शंस विच आर पोर्टेबल, जो आप अपने यहाँ पे लगा लो, ऊपर ढीले कपड़े पहन लो एंड यू कैन रोम अराउंड. और उसकी ऐप होती है आपके फ़ोन में, ऑन किया ऑफ किया और वो आपका बीच बीच में पंप होता रहता है. माई सिस्टर इन लॉ इज़ यूजिंग दैट. नाउ आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन वन मोर ब्रेस्ट पंप लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट, so I did not. So if budget is a problem, then you think and invest. That's why I'm saying कि जब once the baby is born, it's with you. Now when you decide कि मेरे को भाई I need to go out a little, ये है वो है, या मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए एक्स्ट्रा, then you think and buy. Also there are a lot of mom communities, websites which are selling second hand. सो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप वो मशीन सेकेंड हैंड ले लो पूरी, क्योंकि महंगी है वो. और जो आगे का पार्ट है विच यू हैव टू यूज़ ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किन, जस्ट बाय दैट पार्ट विच इज़ गोइंग टू बी मच मच चीपर. तो आपका काम आधे प्राइस में या जो भी उसमें हो जाएगा. सो दैट आई थिंक मेक्स मी लॉट ऑफ सेंस. आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग आई टू डोनेट ऑल माई स्टफ. मैंने अभी तक पहले वाला भी संभाल के इसलिए रखा हुआ था बिकॉज आई थॉट आई यूज़ इट, बट अब उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो आई एम सैड कि वो यूज़ नहीं हो पाया इतना. बट ऑफकोर्स आई एम गोना गिव दीज अवे ऑल्सो वंस आई स्टॉप. हाँ, अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो एक्सप्रेस्ड मिल्क है जो आप पंप करते हो, वो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें आधे ही हैं. जब आप डायरेक्टली उस अपने बच्चे को फीड कर रहे हो तो उनको मिलती है कस्टमाइज्ड फीड. सो टुडे इफ माय किड हैज़ अ कॉफ और अ कोल्ड और फीवर और एनीथिंग, द डायरेक्ट एंटीबॉडीज दैट आर गोइंग फ्रॉम माय बॉडी कैन ओनली बी देयर व्हेन आई एम डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी, क्योंकि वो सिग्नल डायरेक्टली मेरे ब्रेन को मिलता है बच्चे से कि बच्चे की ये रिक्वायरमेंट है, और जो ब्रेन है वो प्रोड्यूस इस हिसाब से करता है जो उस टाइम पे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सो दैट्स आई थिंक अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट. व्हेन आई ऑल्सो रेड अबाउट इट, आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स दैट हाउ अ ह्यूमन बॉडी can do so much, or a mother's body can do so much. The more you can feed directly is obviously better for the kid, but at the same time, if you're exclusively breastfeeding for a long time, वो पूरे time नहीं हो पाएगा. How much can you be around the baby? Sometimes you need, and especially
जो सेकेंड टाइम मॉम्स हैं उनका एक और भी बच्चा है, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर दैट किड ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर वर्किंग तो आप गई तो यू विल नीड लाइक ऑल ऑफ दिस. सो आप कर सकते हो. इवन टुडे आई एम मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग. एक फीड मेरी डेफिनेटली रात को एक्सप्रेस्ड होती है. नाउ आई स्टार्ट स्लीपिंग थ्रू द नाइट बाय द वे. तो मैं लेट सो रही हूँ बहुत. मैं लास्ट पंपिंग मेरी होती है 12:30 या 1 बजे. आइजा हैज स्टार्टेड स्लीपिंग नाउ ऑलमोस्ट थ्रू द नाइट. शी गोज टू स्लीप एट, आई फीड हर लास्ट फीड मैं 7-7:30 बजे उसको कराती हूँ. बाय 7:38 शी गोज टू स्लीप एंड स्ट्रेट वेक्स अप एट 1:30 और 2. सो उससे पहले जस्ट बिफोर शी हैज़ टू वेक अप. अब मेरे को रात को अपना लोन टाइम भी चाहिए होता है, मुझे गौतम के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऑल ऑफ दैट. सो वी वॉच टीवी और व्हाटएवर एंड देन ही स्लीप्स. उसके बाद मुझे बिल्कुल ही अलोन टाइम चाहिए अपना. तो आई वॉच सम कोई सीरीज देखी है, वो साथ साथ में मैं उस टाइम पे पंप करती हूँ. आफ्टर गौतम्स ऑल्सो स्लेप्ट. अब मैं रात को 12:30 या 1 बजे आई पंप. आई कीप इट आउट बिकॉज दैट जो आप पंप करके रख रहे हो मिल्क, दैट कैन बी आउट फॉर 4 to 5 आवर्स. आप उसको बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे फ्रिज में नहीं डालना पड़ता. देन वेन एवर आइजा गेट्स अप मैं बाहर रख देती हूँ. किचन नेट है यहाँ पे. और उसकी नैनी शी बाय द वे शी इज़ नाउ स्लीप्स इन हर ओन रूम एंड आई स्लीप इन माई रूम. पहले मैं 2 महीने तक उसके रूम में थी, 1.5 महीना 2 महीने. एंड फिर उसके बाद जब उसके स्लीपिंग आवर्स थोड़े लंबे हो गए, जो कि 6 वीक्स बाद थोड़ा सा उनका स्केड्यूल बन जाता है, तो तब आई शिफ्टेड बैक टू माई रूम. और फिर उसमें क्या होता था कि मैं रात को एक बार जाती थी तब फीड कराने. इन द बिगिनिंग आई यूज टू डू दैट बिकॉज 2 बार वो जागती थी. एक बार मैं एक्सप्रेस करके रखती थी और एक बार फिर मैं जाके उसको फीड करा के वापस आ जाती थी. स्टार्टिंग ऐसे हुई, कुछ वीक्स ऐसे चला. अब बिल्कुल ही नॉर्मल है कि 1:30 जब वो उठती है, बाहर मिल्क पड़ा होता है एक्सप्रेस होके, वो उसको वो वाला मिल्क पिलाती है, वो दोबारा सो जाती है. Then she wakes up at 5:30 or 6. Then the nanny gets her to me. I feed her in the morning. मतलब मेरे को वो नींद कम ही मिली होती है, 3-4 घंटे, because I sleep late. By 1:30 I go to sleep and Isa comes to me by 5:30 or 6. So I sleep in between that. फिर वो सुबह बहुत फ्रेश होती है तो I feel like playing with her. So then I play with her a little. फीड कराया, आराम से फीड करती है. फिर गौतम के उठने का टाइम हो जाता है, गौतम भी थोड़ी देर खेलता है आइजा के साथ. फिर अनायका के उठने का टाइम हो जाता है. आई वेक हर अप, स्कूल का ये वो कुछ चाहिए, कुछ लेके जाना है, नाश्ता, ये वो सब देख के देन आई गो टू स्लीप अगेन. कि अब अनायका भी स्कूल जा रही है, अब नैनी भी उठ गई है, उठ के फ्रेश हो गई है. सो आई गिव अगेन आइजा टू द नैनी एंड आई स्लीप फॉर अनदर 2 hours. क्योंकि मेरे को यार इतनी नींद नहीं मिल पा रही है कि 4 घंटे रात को मिल गई और फिर 2 घंटे और मिल गई. सो दैट्स 8 और 2 मैक्सिमम 6 या 7 घंटे मैक्स हो गए, उतना ही मिलता है. बट दैट्स फाइन. उसके बाद मॉर्निंग आई यूजुअली, मेरे अगर पिलाटेस है तो आई गो फॉर माई वर्कआउट. आफ्टर दैट नहीं, देन अगेन शी कम्स टू मी. आइजा आती है फिर वापस 10 बजे, उसकी नेक्स्ट सेकंड फीड होती है तो वो करती है वो. उसके बाद आई गो टू डू वट एवर. अगर मेरी शूट है जिस दिन तो मैं शूट करूँगी, कोई इवेंट है तो आई डू दैट, या तो फिर मेरी वर्कआउट है तो मैं वो करूँगी. एंड देन आई कम बैक अगेन, फिर वो फीड चलती है. तो अभी राइट नाउ व्हाट द थिंग इज, आइजा इज गोइंग टू टर्न 5 months tomorrow. आई एम फीडिंग her 5 times, 4 times directly most of the days, and once रात वाला जो फीड है वो ये है. But I had also started giving her formula when she was 2.5 months old. We started with 1 feed of formula, half feed. पहले हमने हाफ से शुरू किया कि I'll feed her, जितना उसका फिर पेट नहीं भरा तो हम उसको और फॉर्मूला दे देंगे. पर वो जब once you start with formula top feed, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है. तो फिर वो दिन में 2-3 बार ऐसे होने लग गया कि okay, I fed her and she's still a little cranky or whatever, she needs to sleep और सो नहीं रही है ढंग से, तो उसको थोड़ा और टॉप फीड दे दिया. We were doing that, but I did not reduce my number of feeds. वो मैं देती रहती थी. So that was happening. So now very early when she was 4.5 months old, after we came back from Thailand, we decided that we want to start solids for her. Although it's early, most people start it at 6 months, but we know that formula is not so great for kids, and I would rather give her a fruit than formula. So it's important that we start replacing her meals. हमारा वो थॉट है, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा सोचना है. नायका के टाइम पे ऑल्सो वी वर कंसर्न कि वो फॉर्मूला ले लिए, इट्स नॉट गुड, इट्स हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर. ऑल्दो वी आर गिविंग हिप ऑर्गेनिक, इट्स अ गुड वन. आप भी रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. बट वी वॉन्ट टू पुट हर ऑफ फॉर्मूला एक्चुअली, कि जितनी जल्दी वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा ले वो बेटर है दैन गिविंग सम पाउडर. सो
I'll continue feeding जब तक मैं कर सकती हूँ मैं तो करूँगी, unless there's a gap. Now I have an opportunity to go for the Paris Fashion Week which is happening in the first week of March. पर मैं नहीं जा रही only because of this reason. I can literally go, but अगर मैं गई तो feeding रुक जाएगी. And Aiza is turning 6 months on 5th March, but मेरे को लग रहा है कि नहीं, I want to continue for a few more months at least. मेरा तो aim है 1 year, honestly. I hope I can do it, even if कम हो जाए थोड़ी, but I can still continue. So that's my aim. But if I go away for 4-5 days, तो मेरे को पता है मैं वहाँ जाके बहुत बिजी हो जाऊँगी और मैं बहुत ज़्यादा पम्प पूरे टाइम नहीं कर पाऊँगी और कम हो जाएगी. एंड शी विल ऑल्सो लूज टच ना विथ मी, तो आई डोंट नो, सो आई एम नॉट रेडी फॉर इट. सो आई थिंक आई विल स्किप दैट. सो कमिंग बैक टू, एंड ऑल्सो आई फील कि जो भी मदर्स हैं वो ऑफकोर्स जब काम से तो ब्रेक लोगे आप लोग, आप नोबडी इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफिस ऑल्सो बिफोर 6 months और एटलीस्ट 3 months तो कोई नहीं करेगा काम शुरू. वो तो मैं ही पागल टाइप की हूँ थोड़ी कि मैंने इतने जल्दी आई bounced back or started working. Maybe I shouldn't have, or to each their own. ऐसा नहीं कि कोई there's a right way to go about it. मेरे लिए क्या है ना कि मैं जितना नहीं कर रही होती ना काम, I think that can be depressing for me. और मेरे को इस टाइम पे कोई भी टाइप का डिप्रेशन नहीं चाहिए था. मुझे कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बात is that. And my only way of fighting that is keeping myself busy. Even after my mom, my only thing was कि I will keep my brain so busy and I will do so many things at the same time that I should not have time to think. बच्चे होने चाहिए आसपास मेरे, ये होना चाहिए, मेरा डॉग है, मेरा बच्चे हैं, मेरे ये वाली फैमिली है, मेरा वर्क है, मेरा नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं कोई उनको नहीं याद करना चाहती. इट्स जस्ट दैट मेरे को वो सैड या डिप्रेस्ड जोन में नहीं जाना. आई वॉन्ट टू कीप माई ब्रेन busy all the time. So that is my defense mechanism or whatever you can call it. That's how I like to fight back. So that's the same. In the same way when Aiza was born, अब मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई किसी की बात का बुरा लगेगा उस टाइम पे, कुछ ये होएगा वो होएगा. टाइम ही नहीं है मतलब कि भाई पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने का. दैट्स माई वे ऑफ डीलिंग विद इट. एवरीबडी कुड हैव अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल एंड आई कुड ऑल्सो बी a victim to that. कोई भी हो सकता है. So what I'm trying to say by this is that if you're not so busy at that time, try to be around the baby, try to feed the baby directly. थोड़े टाइम के लिए भूलना पड़ेगा नींद if you want to really feed. That is one thing that you'll have to compromise. Rest, everything can wait. ये वाला टाइम वापस नहीं आएगा. So don't, बाद में गिल्टी होने से बेटर है अभी थोड़ा सा कम सो लो. That's my suggestion. बाकी everybody can think in a different way. I think if you're much younger, ये भी मुझे भी अक्ल सेकेंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा आई है. फर्स्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बस लग रहा होता है बेड मिल जाए, मैं सो जाऊँ, कोई बच्चा मेरा उठा ले थोड़ी देर, कोई संभाल ले इसको, जो खिलाना है पिलाना है दे दो. बट अभी वो समझ ज़्यादा आई है कि नहीं. उस टाइम पे भी आई स्ट्रगल ऑनेस्टली. उसमें गुड पार्ट वाज दैट वाज कोविड, एवरीवन वाज अराउंड. तो जितनी देर मैं फीड करा रही होती थी ठीक है मुझे कराना है, बाकी टाइम everybody was there to take care of her, which is great. नाने वाने में भी मॉम वगैरह सब हेल्प कर देते थे. So that was a great thing. Now coming to the food that we are giving Aiza. अनायका के food हम बाद में डिस्कस करेंगे. Lot of people want to also know what she eats in the whole day. That can be a whole different segment. But this particular one is Aiza ka, because we've started solid so early. We started with banana. Please read about it. Banana is the best food to give to your baby. It is the closest to breast milk. No formula is close to breast milk, but banana is the closest food that you can give to your baby, which is closer to breast milk. Some people might not be comfortable giving it at 4 months, but we did and it worked well for us. आप ट्राई कर सकते हो, आप 5 months 6 months में दे सकते हो, दैट्स फाइन. यू आर सपोज टू डू इट. हमारे पास तो ये वाली मशीन है, BA-BA करके एक है, तो यू कैन बाय, इफ़ यू वांट यू कैन बाय अ फूड प्रोसेसर लाइक दैट. वरना आप अपने घर का जो फूड प्रोसेसर मिक्सी होती है उसको क्लीन रखिए लेकिन बिल्कुल. और अगर आप वो बेबी फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका ऊपर का अटैचमेंट मंगा लो, सिर्फ वो बेबी के लिए रखो. डू दैट एटलीस्ट, बिकॉज हाइजीन है, उसमें मसालों की स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज़ों की स्मेल नहीं होनी चाहिए. उसको बिल्कुल ही आप सिर्फ बेबी फूड के लिए रखो. उसमें आपको क्या करना है, बनाना तो सिंपल है यार. मैश कई लोग स्टीम करते भी हैं उसको,
कच्चा नहीं होना चाहिए बनाना, बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। एंड यू पीट उसके पीसेस डाल के थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करके उसको मैश कर दो और वो दे दो। इट शुड बी, जब आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल ही, इट शुड बी रनी, थोड़ा पतला होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो वो इतना सॉलिड चबा नहीं कर सकते वो लोग, तो एकदम रनी रखो उसको, थोड़ा वाटरी टाइप। उसमें वार्म थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो आप और उसको मिक्स करके दे दो आप। और अगर आपके पास नहीं है प्रोसेसर या कुछ, बनाना को ईजी है हैंड से भी मैश करना, तो अगर आप स्टीम कर रहे हो तो वो एक्चुअली बहुत सॉफ्ट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसा थोड़ा वार्म वाटर में डाल दो और उसको हल्का हल्का यूं फोक से करके, जैसे फेंटते टाइप नहीं है वैसा कर लो, या मैश कर दो एकदम ही उसको, थोड़ा सा रनी रखो उसकी कंसिस्टेंसी, एंड यू कैन गिव इट टू द बेबी। इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव अदर देन योर ओन मिल्क। सो दैट्स वन। एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड एप्पल फॉर फिर हमने उसको 1 वीक तक अराउंड 10 डेज तक बनाना दिया। अब हमने पिछले 2-3 दिन से ही एक और उसका फॉर्मूला मीट, जो तो वो दोपहर में एक फॉर्मूला ले रही थी और एक शाम में ले रही थी, तो हमने उसका वो भी रिप्लेस कर दिया अब शाम वाला। वी स्टार्ट विद एप्पल। नाउ एप्पल इज़ अ लिटिल हार्ड, उसको स्टीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर स्टीम नहीं कर रहे तो उसके ऊपर एकदम वार्म वाला पानी डालो पहले, उसके बाद उसको घुमा दो मिक्सी में, हाँ, और उसके बाद उसको भी सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट, बट एप्पल इज़ हार्डर, तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा मोस्टली या तो स्टीम या तो फिर बॉयलिंग वाटर में उसको रखना पड़ेगा। उसको काट काट के रख दो, उसके बाद उसको मिक्सी में घुमा लो, फिर वो भी उसको भी थोड़ा सा जब रनी हो जाए तो वो एक फीड दे दो। ट्राई टू गिव, इफ़ यू आर गिविंग एनी फ्रूट, गिव इट बिफोर सनसेट। 5 बजे तक दे के ख़त्म कर दो वो वाला, क्योंकि डाइजेशन स्लो हो जाता है सनसेट के बाद। सो ट्राई इट इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून। आई थिंक द किड्स इन्जॉय दैट, क्योंकि उनको वो एक ही चीज़ मिलती जा रही होती है, महीनों से मिलती जा रही होती है। मोस्ट किड्स इन्जॉय इट। पहले वो थोड़े दिन करेंगे नाटक, फू फू करके खेलेंगे, निकालेंगे, दे ऑल्सो डोंट नो द प्रोसेस, बट आई थिंक इट शुड वर्क. So that's what we've started. Some people also start with veggies, which is also not bad. You can give a pumpkin. You can start with spinach. You can start with broccoli. These are all good foods to give. We will start it later. We believe a lot in fruits. Anaika also has a lot of fruits. पूरे दिन में वो 6 फ्रूट्स खाती है, सुबह 3 और शाम में 3। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमने अपनी बेटी को हम चॉकलेट नहीं देते, शुगर नहीं देते। ऐसा नहीं है, हम उसको सब कुछ देते हैं, बट वो ज़्यादा खाती ही नहीं है, बिकॉज उसकी सारी शुगर क्रेविंग सब चीज़ें फ्रूट से ही फुलफिल हो जाती हैं, तो बॉडी डज नॉट क्रेव दैट एट ऑल। सो दैट्स अ गुड थिंग। हम लोग देते हैं उसको सब कुछ। हम उसको आइसक्रीम भी बोलते हैं, वो 2 बाइट के बाद खाएगी ही नहीं कुछ भी। केक भी वो बहुत एक्साइटेड होती है, आई विल ईट दिस, आई विल ईट चॉकलेट, बट शी डजंट लाइक ईटिंग, बिकॉज द थिंग इज़ टू, इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग थिंग्स फ्रॉम हर डाइट, वो खुद एलिमिनेट हो जाती हैं। जब हम हेल्दी चीज़ें ऐड करते जाओ, हम उसको नट्स खिलाते हैं, उसको फ्रूट्स खिलाते हैं, हम सब इतना हेल्दी उसको खिलाते हैं कि अगर वो अनहेल्दी खा भी ले, पहली बात तो डजंट मैटर, बिकॉज 90% हेल्दी डाइट है। और अगर उसके पेट में जगह भी तो होनी चाहिए, डाइट तो उतनी ही है ना, ये तो खाना ही है, उसके बाद यू कैन ईट दैट। तो वो उसके बाद वाले में उसके पास इतनी जगह ही नहीं होती पेट में। सो दैट्स हाउ वीव डन इट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई रियली जस्ट वांटेड टू कम एंड टॉक अबाउट। हाँ, वन मोर थिंग, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग एनी फूड्स टू योर किड्स, इवन इफ दे आर 7, 8, 9 months, प्लीज डोंट ऐड एनी शुगर, प्लीज डोंट ऐड एनी सॉल्ट, दे डोंट नीड इट। हमें लग रहा होता है बच्चे को टेस्ट नहीं आएगा, उनको नहीं पता टेस्ट। इफ द स्टार्टिंग इज करेक्ट, जो अर्लियर यू स्टार्ट इट तो इट्स बेटर, क्योंकि उनको बड़े होके तो तुम फिर वो इश्यूज हो जाते हैं, हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता, क्योंकि स्टार्टिंग से हैबिट्स नहीं डाली थी और वो ठीक नहीं थी। तो वो गलती अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, इट्स फाइन, बट ट्राई टू इंट्रोड्यूस इट इन सम वे और दी अदर। अब जैसे कईयों के बच्चे नट्स नहीं खा रहे, कि बादाम काजू दिस दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। नहीं खा रहे तो बहुत सारे नट पाउडर्स मिलते हैं, आप उसको स्प्रिंकल कर दो, उन्हीं की दाल में मिक्स कर दो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में उनको खिलाना ज़रूरी है। जो चीज़ वो खिलाइए, फ्रूट्स नहीं खाता हमारा बच्चा, तो कुछ और तरीके से ट्राई करो। उसके लिए मैं एक डिफरेंट सेगमेंट बनाऊंगी, दैट्स फॉर ओल्डर किड्स। ऑब्वियसली छोटे बच्चे सब खा लेंगे, ऑफकोर्स उनको कुछ टेस्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कुछ कम अच्छे लगेंगे, बट देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। यू कैन रीड अबाउट इट कि फर्स्ट फूड्स टू इंट्रोड्यूस टू किड्स या फर्स्ट वेजिटेबल्स कौन से देने चाहिए, तो वो सब पे आप कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इट। आई जस्ट वांटेड टू टॉक about this journey of mine. It's going well, thankfully. I mean, of course, I didn't want to give formula. मुझे लगा था कि मैं 6 महीने एक्सक्लूसिव करूँगी, वो नहीं हो पाया, but it's okay. आप लोग भी ट्राई करो, it's really good if you can. If you can't, you don't have to take stress. Please don't
गेट गिल्टी अबाउट एनीथिंग. एवरी मॉम इज़ डूइंग द बेस्ट फॉर देयर बेबी. एंड अगर आसपास के लोग बोलते हैं तो मैं यही बोलूँगी, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. सबकी अनसॉलिसिटेड एडवाइस आएगी, सब लोग अपने करेंगे, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, ये तो करना ही होता है. ऐसा कुछ नहीं है. अपनी इन्फॉर्मेशन या तो डॉक्टर की सुनो या गूगल करो, अच्छे से पढ़ो, चैट जीपीटी से पूछ लो. सबकी राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में. जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको कैरी करना है अपने साथ, अगर पंप आपने कैरी किया अपना और आप कर रहे हो, तो साथ में एक क्या कहते हैं उसको, इंसुलेटेड पाउच खरीद सकते हो आप या ले सकते हो, जिसके अंदर वो सिल्वर नहीं होता. उसके अंदर आप कुछ वार्म रखोगे तो वो वार्म रहता है, कुछ कोल्ड रखते हो तो कोल्ड रहता है. तो उसके अंदर आप भर लो अपनी आइस पैक नहीं होते जो, या आइस ही भर लो डायरेक्टली, और उसमें आप स्टोर कर सकते हो. तो उसमें अप टू, जैसे जब मैंने ट्रैवल किया था एक बार दिल्ली आई वेंट, सो आई वाज अवे फॉर 1 फुल नाइट. एक दिन सुबह गई थी और अगले दिन शाम को घर आई थी. सो आई केप्ट स्टोरिंग इट इन दैट. तो मैंने पहले तो होटल जिसमें रुकी थी वहाँ पे रखवा दिए मैंने आइस बॉक्सेस. नॉर्मल आप फ्रिज में भी अप टू 2 days स्टोर कर सकते हो ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप फ्रिज कैसे रखोगे, तो आपको आइस में रखना पड़ेगा. तो मैंने जब मैं होटल से चेकआउट किया तो आई टोल्ड दोज पीपल कि मेरे आइस पैक उनको मैंने रखवा दिए थे फ्रीज़र में. फिर मैंने उनसे लिए, उसमें मैंने मिल्क रखा जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, और वो अप टू 12 hours बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि वो एकदम जमी हुई है और वो इंसुलेटेड के अंदर है, तो इतनी जल्दी पिघलेगी भी नहीं. सो मैंने सारे आइस पैक भर दिए उसमें, और उसमें मेरे सारे ब्रेस्ट मिल्क की बॉटल्स भर ली जो मैंने पूरा 1.5 दिन तक पंप किया था. एंड देन आई गॉट इट बैक विथ मी. और उससे पहले मैं अच्छा से पूरा प्लानिंग करके स्टोर करके आइज़ा के लिए रख के चली गई थी, तो थोड़ा सा बैंक बना लिया था, तो वो उसको दिया था. और आने के बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था 3-4 दिन के लिए, क्योंकि मैंने इतना सारा वहाँ पे पंप कर लिया था. लॉट ऑफ पीपल हैव ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट अल्कोहल. हाउ डू आई, समटाइम्स आई एम गोइंग आउट फॉर अ पार्टी और समबडीज बर्थडे एंड आई एम हैविंग, ऑफ कोर्स आई हैव टू लिमिट इट. आई कैन हैव 1.5 एट द मैक्स. तो मैं उससे पहले क्या करती हूँ, राइट बिफोर आई वांट टू ड्रिंक, या तो मैं उसको फीड करा के उसी टाइम निकलती हूँ घर से, या तो फिर मैं पंप कर लेती हूँ जस्ट बिफोर दैट. आई ऑलवेज कैरी माई ब्रेस्ट पंप. गाड़ी में बैठे ऊपर कवर पहना, अंदर फटाफट पंप किया. एंड अब एक बार पंप हो गया तो अब मुझे नेक्स्ट 3 hours नहीं चाहिए, तो फिर मैं ड्रिंक कर लेती हूँ. और अगर मैंने ज़्यादा ड्रिंक ले ली है, लाइक इफ़ आई एम हैविंग 1 ड्रिंक, उसके बाद मैं 1 लीटर पानी पीऊँगी, सब करूँगी, 3 घंटे बाद आई कैन फीड. If I've had just 1, but if I've had 2 drinks, उससे beyond तो I don't go because my body also doesn't allow. तो मैं next feed को पंप करके फेंक देती हूँ, डंप कर दिया. So it's called pumping and dumping. You can do that in case you've had alcohol. वैसे तो अवॉइड ही करनी चाहिए इस टाइम पे अल्कोहल. और अब इस उम्र में ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई बड़ी पार्टियां करनी होती हैं और हम टल्ली हो गए हैं. एक आध कभी डिनर पे गए, ड्रिंक पी लिया, किसी का बर्थडे है तो ले ली, वैसा ही होता है. So yeah.